नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका है। उम्मीद के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने ही ज्यादातर सीटों पर बाजी मारी है। वहीं बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस की झोली में भी कुछ सीटें आई हैं। तृणमूल समर्थकों ने अबीर लगाकर एक दूसरे को मुबारकबादियां दी। वहीं सीपीएम ने आरोप लगाया कि काउंटिंग प्रक्रिया में तृणमूल पुलिस की सहायता से घोटाला कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी जीत के लिए जनता को धन्यवाद जताया। ममता बनर्जी सब समय बोले जोगाय माधाय गोदाय सीपीएम बीजेपी कांग्रेस सब भाई भाई তোরা দেখ পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখ বংশগোপালের গদিতে বিজেপির লোকরা বসে আছে একদম বংশগোপাল সিকিউরিটি রেখে গেছে আমরা মমতা ব্যানার্জি দল করি আমরা মারপিট করব না ভয়ের কিছু কারণে আসুক ওদিকে আমরা মিষ্টি খাওয়াবো একটা সিট দুটো সিটের বেশি ওদের ভাগ্যে নাই বিজেপিকে মানুষ ভোট দেবে না সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে মানুষ চায় না মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের নিরিখে তিরাট অঞ্চল জিতেছে রতিবাটি অঞ্চল জিতেছে 11 অঞ্চল জিতেছে বল্লভপুর অঞ্চল জিতেছে আমরা শতাঞ্চল গণনা চলছে 2-2 হয়ে আছে ওখানেও আমরা জিতব বিপুল ভোটে একদম না আমি তো এইমাত্র কাউন্টিং করে এলাম সন্দীপ গোপ মন্ডল 4 এর বিজেপির প্রেসিডেন্ট সে বলল বাপিদা ভোট হয়েছে জনগণ আমাদেরকে ভোট দেয় নাই ওদের ওটা স্বভাব পায়ের তলায় মাটি নাই বলছে তার জন্য বলছি আছে তোরা তো মিডিয়া দেখিছিস সব জায়গাতে বল্লভপুর অঞ্চল বিবেক মণ্ডলকে হারানোর জন্য প্যারামিটারে 150 মিলিটারি দিয়েছিল বিবেক মণ্ডলকে হারানোর জন্য 11 বুথটাতে অমৃতনগরে রাত 8টা পর্যন্ত ভোট হয়েছে লাইনে কোথাও রেগিং হয় নাই সেন্ট্রাল বাহিনীতে ভরে দিয়েছিল আর সেগুলো কি করে জিতল ওগুলো ওদের কুৎসা মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন মমতা ব্যানার্জির সব কিছুই থাকবে অভিষেক ব্যানার্জির সংগঠন মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দেখুন এটুকুই বলবো আমি যে আমাদের জোনের ইতিহাস আছে আমরা মানে দুটো জায়গাতে আমরা ওপেনিং এই মুহূর্ত পর্যন্ত এই যে আপডেট এসছে তার মধ্যে যে আমরা দুটো জায়গায় দুটো সিট পেয়েছি এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এখনও 11টা কাউন্টিং বাকি আছে তাতে বেশিরভাগ সংখ্যকই হয়তো আমাদেরই আসবে। আমার নাম বাদশা চ্যাটার্জি ভারতীয় জনতা পার্টি আমি 11 পঞ্চায়েত থেকে দাঁড়িয়েছিলাম 261 নম্বর বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে এবং আমি জয়লাভ করি। ওনার নাম হচ্ছে মনসা পাল মনোজ গৌড় ভালো নাম হচ্ছে মনোজ গৌড় ডাক নাম মনসা ও দাঁড়িয়েছিল হরিমল সমিতি মানে বল্লভপুর পঞ্চায়েত 282 নম্বর বুথ থেকে উনিও জয়যুক্ত হয়েছেন। যে 2018 ও 2023 এক নেই এটা কথাটা আমরা আগেই বলেছিলাম আর কি বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আবার লালের দিকে ফিরছে এটা আজকে প্রমাণিত বিভিন্ন জায়গায় মানুষ বামপন্থীদের পক্ষে আসছে আর গোটা রাজ্য জুড়ে রানীগঞ্জ তার বাইরে নয় অনেকগুলো গ্রাম পঞ্চায়েত যেগুলো যে পঞ্চায়েতগুলোতে হয়তো আমাদের কোনো সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ছিল না কিন্তু এই সময়কালে আমরা দেখলাম যে এত ছাপ্পা লুট সমস্ত জায়গায় সন্ত্রাস সমস্ত কিছু করার পরেও অনেকগুলো গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের সদস্য সংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি আর কি সম্পূর্ণ প্রশাসনের মদত নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের যে যারা কাউন্টিং এজেন্ট গিয়েছে আমরা যা খবর পাচ্ছি আর কি যে নতুন করে ওরা যেভাবে কাউন্টিং রেজাল্ট যেভাবে দেওয়া প্রয়োজন সেভাবে কিন্তু দিচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে জেতা সিট যেগুলো আমরা জিতছি রিজেক্টগুলোকে নতুন করে দিয়ে পরে কাউন্টিং করে আমাদের পার্টিগুলোকে হারিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভিতরে একদম প্রশাসনকে মদত নিয়ে এভাবে করছে আর কি যেমন আমরা সোজা গ্রাম পঞ্চায়েতের একই রকম অবস্থা
একদম যেটা আমাদের পঞ্চায়েত আর কি সেই জায়গায় এরকম অবস্থা করছে। বিভিন্ন জায়গায় জেমেরের একটা পঞ্চায়েতে আমাদের ক্যান্ডিডেট জিতছে ঘোষণা করছে, সেই জায়গায় গিয়ে আবার আমরা যেটা দেখছি যে নতুন করে তারা আপনার বাইরে থেকে বিনোদনিয়া বলে কে আছেন উনি আর কে ঢুকছেন প্রত্যেকটা রুমে, মানে আমাদের যারা আছে তারা ঢুকতে পারছে না, কিন্তু বিনোদনিয়া কোথাকার কে উনি আর কে ঢুকে যাচ্ছেন। ঢুকে গিয়ে যেটা করছেন আর কি রিজেক্ট ভোট যেগুলো রিজেক্ট ভোটগুলো দিয়ে পরে আপনার নতুন করে আবার রেজাল্ট করাচ্ছে, এই হচ্ছে অবস্থা। প্রহসনের নির্বাচন হচ্ছে আর কি, তবুও মানুষ তার মধ্যেও দাঁড়িয়ে মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন। যে সকল মানুষ বামপন্থীদের পক্ষে থেকেছেন, এই জোচ্চোরদের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছেন আমাদের পক্ষে, তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে লাল আবার ফিরবে, অসুবিধার কিছু নয়, লড়াই জারি আছে, লড়াই থাকবে। संजय प्रामाणिक। टीएमसी की जीत का जश्न आज आसनसोल बस स्टैंड में मनाया गया। INTTUC नेता राजू अहलवालिया के नेतृत्व में एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशियां मनाई गईं। राजू अहलवालिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर आस्था रखा और विरोधी पार्टियों के चक्रांत को नाकाम कर दिया। देखिए, सब तरफ ग्राम पंचायत का जो चुनाव था, सब तरफ तृणमूल कांग्रेस का जो है परचम लहराया है। विरोधी शून्य हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम जो तीनों ने हाथ मिलाकर तृणमूल को हराने की कोशिश की थी ग्राम पंचायत में, उनको मुंह की खानी पड़ी है। सब जगह उनका सुपड़ा साफ हो गया। ग्राम की जो जनता है, ग्राम के जो लोग हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बंदोपाध्याय पर पूरा अपनी आस्था जताई है और हर तरफ आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का जो है प्रार्थी विजय घोषित हो रहे हैं। इस तरह से ये प्रमाण हो गया कि लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, इसके बाद हमारा तो नगर निगम, इसके बाद पंचायत में तृणमूल छोड़कर पश्चिम बंगाल की जनता और किसी भी राजनीतिक दल को नहीं चाहती है, क्योंकि ये सब भौतावाद दल है। सीपीएम ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, कांग्रेस से हाथ मिलाकर पश्चिम बंगाल में अशांति करने की चेष्टा की थी, लेकिन उसका जवाब जनता ने दिया है और आज सब तरफ तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थियों की जय जयकार हो रही है। लोग खुशियां मना रहे हैं। हम लोग भी जो मजदूर लोग हैं वो आज खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, अबीर खेल रहे हैं। ये प्रमाण हो गया कि मां माटी मंच की नेत्री ममता बनर्जी जो है लोगों के हित में काम करती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी का कोई स्थान नहीं है। लोगों ने इनको फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये एक माने जनगण विरोधी लोग हैं। इनको शर्म नहीं है, इनको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इनके जितने प्रार्थी थे सबकी जमानत जब्त हो गई है और सब जो है बुरी तरह से पराजित हो गए हैं। ये पश्चिम बंगाल का जो जनता के जो ग्राम अंचल की जो जनता है, हम लोग INTTUC की तरफ से उनको सैल्यूट, उनको हम लोग जो है अभिनंदन जनाते हैं कि आप लोगों ने इतिहास दिखा दिया और जो है आने वाले लोकसभा निर्वाचन में भी जनता जो है पश्चिम बंगाल की जनता उनको जो है बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम को फिर इस तरह से पराजित करेगी, ये लोगों ने ठान लिया। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल।
महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। আমরা আজকে এই ব্রিজ, আগে একটা ব্রিজ শুরু হয়েছে আপনারা জানেন, কসাই মহল্লা যে ব্রিজ ছিল সেই ব্রিজ শুরু হয়েছে, এরপরে এই লোহা ব্রিজটাও শুরু হচ্ছে। এর মূল যিনি ইন্সপিরেশন আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপরেই আসানসোলের উন্নয়নে যিনি কাণ্ডারি। भरोसा है कि ये पॉजिटिव काम है। दादा आहिस्ता आहिस्ता जरूर सोचिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर, और देखिएगा एक दिन दादा को अगर ये जिस दिन पता चल गया कि वाकई पॉजिटिव काम है तो इंशाअल्लाह आज जिस तरह से हम लोग इस काम का ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक अगले दिनों में भी हम लोग उसको ओपनिंग करने इसी जगह बैठेंगे और इसी जगह पर मीटिंग करके हम लोग दिखाएंगे कि नहीं देखिए आज ये काम शुरू हुआ है। यही कह करके मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ के लोगों को अच्छी सूझबूझ समझदारी दे और अपने अच्छे घटक साहब कर रहे हैं अपने हाथों से। एक दरीना आरजू थी यहाँ के आवाम का, ये कंजेस्टेड यहाँ पे अभी देखिए कितनी भीड़ लग जा रही है, कितने जाम हो रहा है। तो इस तकलीफ को दूर को करने के लिए मौलाना घटक साहब ने जो वादा किया था आज ये निभाने आए हैं। अब हम लोग की जरूरत पड़ रही है कि हम लोग इस काम को, अभी मास्टर शकील साहब ने कहा है कि इसको ऊपर तक यार्ड में मिलाया जाए, तो हम लोग पूरी ताउन करें इसके बारे में। तरक्की के लिए हम एक हो जाएंगे, अपनी तमाम अख्तलाफात को दूर कर दें, अपने पार्टी और वहदे को हम लोग पलाए ताक रख करके इस तामीरी काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये हमारे नस्लों को काम आने वाली है। ये हमारे नस्लें इससे फायदा उठाएंगे, हमारे
हम लोग जो मिल बैठकर ये काम करेंगे तो नस्लें जवाब देंगी, वरना ऐसा होगा कि जरा सी बात से हम लोग का काम में कहीं अड़चन नहीं आनी चाहिए। हम आज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अहले रेल पार, ये मुतहिद कर ले कि यहाँ पे जो लोग कुछ आएंगे हम में तफरका डालेंगे, कुछ पार्टी के नाम में, कुछ ओहदे के नाम में अपना यहाँ रखना डालेंगे, कमाई का जरिया बनाएंगे, तो हम लोग इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। 34 साल का बाया महास की सरकार में तरक्की काम कहीं दिखने को नहीं मिल रहा था। अगर हम लोग आसनसोल के जिला अस्पताल का मिसाल लेंगे तो 2011 से पहले का वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पहले सब डिविजनल हॉस्पिटल था और आज का जिला अस्पताल जाके देख लीजिए। ये तरक्याती कामों का एक मिसाल है। हर इलाके में रास्ते घाट, पानी का निजाम, रास्ते में बिजली का निजाम, ये जो काम है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी जो हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हर इलाके में गांव-गांव में जाके देखिएगा पक्की सड़क बनाया गया है। गांव-गांव में पीने के पानी का निजाम किया जा रहा है। ये तरक्याती काम ममता बनर्जी की तरफ से जब पूरे बंगाल में एक तरक्याती सैलाब आया है तो उसी बंगाल का एक हिस्सा जो हमारा आसनसोल सुमाल हल्का है, यहाँ भी हमारे गार्जियन, हमारे सरपरस्त, हमारे विधायक, हमारे मंत्री मुलाई घटक ने एक सैलाब का, तरक्याती सैलाब का ज्वार भाटा उठा दिया है। चार तरफ जाके देख लीजिए, हर नदी के ऊपर में जो ब्रिज था वो ब्रिज तामीर किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, पुख्तीकरण किया जा रहा है। चाहे वो कल्ला का ब्रिज हो, अभी हम लोग के सामने कुरैशी मोहल्ला मोड़ का ब्रिज का तामीर जोरों शोर के साथ चल रहा है। और तरक्याती काम जहां होता है, रास्ता का ट्रांसपोर्टिंग जहां सही होगा, उस इलाके में डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है। वहां के लोगों का रोजगार में भी डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होता है। लोगों का जब ट्रांसपोर्टिंग सहूलत ज्यादा रहेगा तो वहां मार्केटिंग भी ज्यादा डेवलप करता है। अभी जैसा कि शकील साहब बता रहे थे कि हम लोग जब छोटे थे देखा था वो बांस का ब्रिज था, वो इकबाल ब्रिज जो है, लेकिन वो जब इकबाल ब्रिज का ब्रिज बना, उसके बाद ओके रोड और केटी रोड जब मिल गया तो वो इलाका माशी तौर पर, तजारती तौर पर कितना डेवलप किया है। तमाम जगह पे हर घर जितना रोड साइड में मकान है, पक्की मकान, वो जो है डेवलप किया है, वहाँ पे दुकान बाजार हुआ है। ठीक इसी तरह से कुरैशी मोहल्ला का जो बाजार है, आज जो ये रास्ता जब चौड़ा होगा तो जीटी रोड और एटीडीए से जो मेन रास्ता जुड़ जाएगा, यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग जब बढ़ेगा तो यहाँ का तजारती जो माशियाती है वो भी तरक्की करेगा। ये सिद्दीक ब्रिज जो लोहा पुल से जाना जा रहा है, ये ब्रिज छोटा है, एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी हम लोग इंतजार में रहते हैं, जब वो पार कर जाएगा तब दूसरा गाड़ी क्रॉस करेगा। आज ये ब्रिज का फाउंडेशन होगा, उस ब्रिज के तामीर होने के बाद ही जस्ट इस बीच में जो इलेक्ट्रिक और पानी के पाइपलाइन का जो काम होगा, और ये ब्रिज का जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो ये ब्रिज आपको मुसद्दी मोहल्ला, खलासी मोहल्ला, बिस्ती मोहल्ला होते हुए ये जो रास्ता स्टेशन के तरफ जाता है, सामने में दादा ने डीआरएम को भी चिट्ठी किया है, रेलवे डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी किया है कि ये रास्ता 7 नंबर का जो प्लेटफॉर्म का रोड है इससे मिला दिया जाएगा। तो ये जो तरक्याती काम होगा तो सिर्फ ये रेल पार का ये जो, और इसका इंक्वायरी भी हो गया है, देखिए दादा भी बोला इसका इंक्वायरी भी हो गया है, इसका रेलवे जो है अपना इंक्वायरी भी कर लिया, प्लानिंग चल रहा है। बल्कि सितला मुदौड़ी जितना इलाका है, इन लोगों के लिए स्टेशन का रास्ता बहुत करीब होगा। जब यहाँ से ये रास्ता चालू होगा तो यहाँ ट्रांसपोर्टिंग होगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का दुकान मार्केट का हालात बढ़ेगा, बेहतर होगा। तो तरक्याती काम जिस तरह से बढ़ रहा, रोज खुद कफील भी होंगे। तो ये जो काम ममता बनर्जी और मुलाई घटक के निर्देश से यहाँ पे किया जा रहा है, आसनसोल के हम लोग के सुमाल के विधायक, मंगली बंगाल के वजीर, जिनको हर बंगाल के कोने कोने में लोग तलाश कर रहे हैं कि मुलाई घटक जैसा विधायक हमारे क्षेत्र में होना चाहिए था। मैं बंगाल के कई जगहों पे कई कामों से जब गया है तो वहां के लोग ये कहते हैं कि अरे आप लोग तो खुशनसीब है कि मुलाई घटक जैसा वृक्ष आपका विधायक है क्षेत्र का, बंगाल के ऐसा विधायक हमारे इलाके में होना चाहिए। आज जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान खोजता है
कि अरे ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री बंगाल की है, वो मुख्यमंत्री तो हम लोग के यहाँ होना चाहिए। तो एक ममता बनर्जी सब जगह तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग तैयारी में है कि उनको हम लोग वज़ीर आज़म बना करके पूरे हिंदुस्तान का आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से मुलाय घटक को भी सब खोज रहे हैं कि विधायक तो हमारे इलाके का होना चाहिए। तो ऐसे विधायक हम लोग को मिले हैं जो पूरे तरक्याती कामों का सैलाब ला दिया है। कुरैशी मोहल्ला में कम्युनिटी सेंटर, तो अभी दादा बोल रहे थे 25 नंबर में 600 सीटर का एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा, उसके बाद पानी का 2 ओवर टैंक बनेगा इस रेल पार के आवाम के लिए। ये सारी काम तरक्याती जो सैलाब चल रहा है, बस आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का ताउन जरूरी है। हम सब एक साथ मिल करके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, मुलाय घटक के हाथों को मजबूत करेंगे, ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करेंगे और तरक्याती कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज ये जो सिद्दीक ब्रिज है, सिद्दीक ब्रिज का हम लोग काम चालू करने के लिए इधर आए हैं, परिदर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग को मालूम है कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल का तरक्की का चारों तरफ में काम कर रहे हैं। पैसा तो आप लोग को मालूम है कि दिल्ली का जो सरकार है, बीजेपी का सरकार, ये लोग 1,50,000 करोड़ रुपया जो हम लोग का सरकार को मिलना चाहिए अभी भी रुक के रखा है। सीपीएम का जमाना में सीपीएम का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार ऊपर 2,03,000 करोड़ का उधार सर पर दे के गया था। उसमें भी करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज देना पड़ता है। ये सब देने के बाद भी ये जो सिद्दीक ब्रिज आज यहाँ उद्घाटन हो रहा, इसका 8,24,92,000 रुपया इसमें सरकार की तरफ से टेंडर किया गया था। चांदमारी में भी जो ब्रिज चल रहा है 7,11,74,000, मैंने कम से कम 16-17 लाख करोड़ रुपया का ये दोनों ब्रिज में सरकार की तरफ से हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का आशीर्वाद से दिया गया। तो जब चालू हो गया वो ब्रिज का काम करीब 1-1.5 महीना आगे हम लोग चालू कर सकते थे, लेकिन जब चालू करने किया तो हम लोग देखा कि वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ब्रिज में पानी का पाइप गया हुआ है। तो ये ब्रिज का पानी का पाइप हटाने के लिए, ट्रांसफार्मर हटाने के लिए करीब 1-1.5 महीना टाइम लग गया। ईबी ब्रिज में पानी का पाइप है, ईबी ब्रिज का बगल में आपका ट्रांसफार्मर है, तो ये सब हटाने का काम तुरंत चालू हो जाएगा। पानी का पाइप का काम तो कल परसों से चालू हो जाएगा। ट्रांसफार्मर भी काम जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम लोग को टाइम देगा, पीडब्ल्यूडी की तरफ से टाइम देगा, उस दिन ट्रांसफार्मर भी हटाने का काम चालू हो जाएगा। और चूंकि वो ब्रिज अभी बन रहा, टूटा हुआ है, गाड़ी जाना आना बंद है, तो वो ब्रिज का जब तक न ढलाई हो जाता है तब तक ये ब्रिज तोड़ने का काम करने से रेल पर का आदमी का बहुत तकलीफ हो जाएगा। ऐसे ही तकलीफ है, ऐसे ही बहुत आदमी को घूम के जाने पड़ रहा है अभी। तो ये दोनों अगर हो जाएगा और वो ब्रिज का ढलाई हो जाएगा तो तुरंत दूसरा दिन से ये तोड़ने का काम चालू हो जाएगा। फिर 1.5 महीना रुकने नहीं होगा, वो 1.5 महीने का काम हम लोग पहले से कर लेंगे। इलेक्ट्रिक का काम, पाइप का काम पहले से कर लेंगे। और एक यहाँ से रिक्वेस्ट आया था आप लोग का डिप्टी मेयर वाशिमुल फंसावी कि दादा अगर 7 नंबर प्लेटफॉर्म से ये रोड को जोड़ दिया जाए, तो हमने डीआरएम को चिट्ठी भी लिखा, डीआरएम को बोला भी है, उसका मुताबिक डीआरएम के इंस्पेक्शन भी हो गया। ये मेरा ख्याल से बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा और ये काम होने से और कोई टनल का नीचे से रेल पार का आदमी को जाने नहीं होगा, सीधा के सीधा 7 नंबर प्लेटफॉर्म का रोड से जुड़ जाएगा। तो गाड़ी हो सकता मिनी बस भी रेल पार का अंदर से जाना आना चालू कर देगा। और अगर रेल पार का स्टेशन से ये रास्ता जुड़ जाएगा तो एक रास्ता से जब हजारों आदमी जाना आना चालू करेगा तो वो रास्ता का दोनों तरफ में बिजनेस अगर करेंगे, छोटा सा दुकान गुमटी जो भी लगाएंगे तो बहुत लड़का का, बहुत परिवार का कुछ आमदनी का भी रास्ता खुल जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबर आसनसोल को। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।